Good morning, class. Today we are starting with our chapter number 6, Life Processes. लाइफ के प्रोसेसेस कितने हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? उसके बारे में ये लेसन है अपना। कौन कौन से प्रोसेस हैं हमारी लाइफ के? विच आर द प्रोसेसेस ऑफ आवर लाइफ? कौन से प्रोसेस हैं अपनी लाइफ के? बुक में मत देखो, ऐसे ही बताओ। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running or a cow chewing the cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive. But how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. What happened to the plants? How do we know that they are alive? We see them green, some of us will say, but what about the plants that have leaves of colors other than green? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. But a plant that is not visible growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So, using visible movement as the defining characteristics of life is not enough. Movements over very small scales will be invisible to the naked eyes. Movement of molecules. Example, is this visible molecular movement necessary for life? If we ask this question to the professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. And that is particularly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. Why are molecular movements needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. Because of the effect of the environment, this organized order nature of living structures is very likely to keep breaking down over the time. If order breaks down, the organisms will no longer be alive, so living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move the molecules around all the time. So what are the main maintenance processes in living organisms? Let us explore. अभी कोई चीज़ जिंदा है या डेड है, कैसे पता चलेगा कि भाई कोई बोल रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है? अगर मान लो ये सब सो रहे हैं तो सो रहे होंगे तो भी उनके पेट सांस लेंगे तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो हम पता चलेगा भले ये ज़िंदा है, सो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि तुम पता भी नहीं लगा सकते कि ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और प्लांट्स को कैसे हम कहेंगे? प्लांट्स भी लिविंग है ना, लेकिन वो तो सांस नहीं लेते, तो कैसा पता चलेगा कि ये लिविंग है कि डेड है? तो ग्रीन कलर के जब पत्ते आते रहेंगे उसमें, तब हम समझ जाएंगे कि ये प्लांट जिंदा है ना। लेकिन कुछ प्लांट्स के तो पत्ते ग्रीन कलर के नहीं होते, अलग कलर के होते हैं। लवेंडर कलर के प्लांट्स होते हैं कुछ, है ना, रेडिश कलर के। तो कैसे पता चलेगा ये ज़िंदा है कि नहीं? प्लांट की साइज़ ग्रो होती है तब, है ना। लेकिन ये सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अभी मान लो कि हम वायरस की बात करते हैं, अभी वायरस तो मूवमेंट करेगा क्योंकि तुम्हें खुली आँख से दिखेगा ही नहीं, पहले तो उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। और वायरस ऐसी चीज़ है कि जब तक वो किसी और सेल में घुसेगा नहीं तब तक वो इनएक्टिव ही पड़ा रहेगा। जैसे कैसे पत्थर का टुकड़ा पड़ा है तो पड़ा ही है, राइट।
लेकिन जिस वक्त वो वायरस किसी जानवर या इंसान या प्लांट के सेल में घुसेगी, क्योंकि ये तीनों लिविंग बीइंग हैं, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये सब लिविंग बीइंग्स हैं। अगर उनकी बॉडी के अंदर सेल होते हैं, उस सेल के अंदर ये वायरस घुस जाएगा, फिर वो एक्टिव होगा, फिर वो मूवमेंट नहीं दिखाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसको जो एनर्जी चाहिए वो खुद में से एनर्जी नहीं मिलती है, उसको हमारे बॉडी के सेल में से एनर्जी मिलती है। फिर वो एक्टिव ग्रोथ होने लगेगा, उसमें से एक में से दो होने लगेंगे, फैलने लगेगा। तो जब तक वो सेल में नहीं जाएगा तब तक तो डेड जैसे ही पड़ा रहेगा। तो क्या वो पहले मरा हुआ था? जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, एक सीड, बीज दे दिया मैंने आपको, है ना? अब दो बीज है आपके पास हाथ में, एक को ऐसे ही बाहर रख दो, राइट, और एक को ज़मीन के अंदर डाल दो, उसको पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, तो उसमें से प्लांट उगेगा। और दूसरा जो बाहर सीड पड़ा है उसमें से नहीं उगेगा। तो बाहर पड़ा है तो क्या वो मुर्दा है? नहीं, उसको जब पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो ग्रो होगा, राइट? तो हम कह नहीं सकते कि ये सीड मर गया है कि ज़िंदा है, जब तक उसको इन्वायरमेंट। तो उसी तरह वायरस भी ऐसा ही होता है, जब तक इंसान के सेल में घुसेगा नहीं तब तक वो अपने लाइफ प्रोसेस शुरू नहीं करेगा। जैसे बीज है, जब तक मिट्टी में नहीं जाएगा, एयर, वाटर, सनलाइट, फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा, तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? क्योंकि जो भी लिविंग बींग्स है उनके ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स टिश्यू से बने होते हैं, टिश्यू सेल से बने होते हैं, और सेल के अंदर भी छोटे छोटे और ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? What are the life processes? The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life processes. अभी आप बोले ना, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे बैठी हूँ, बेंच पे सो रही हूँ, सोच रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, मूवमेंट कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी हमारी बॉडी का मेंटेनेंस, कुछ सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं और उसकी जगह नए सेल आ जाते हैं। तो ये मेंटेनेंस कौन करेगा? कैसे होगा? हमारी बॉडी में करोड़ों सेल रोज डेड हो जाते हैं और उसकी जगह नए सेल आ जाते हैं। मान लो कि ये करोड़ों सेल डेड नहीं होते हैं, राइट, और दूसरे करोड़ों सेल आ जाते हैं बॉडी में, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए फिक्स है कि कुछ सेल्स डेड हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे तुम्हारी बॉडी, उसकी जगह नए आ जाएंगे। अभी वो डेड नहीं होंगे, तुम्हारी बॉडी में से निकलेंगे नहीं और उसकी जगह नए आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इंसान? बीमार हो जाएगा। हाँ, बीमार, जिसको हम बोलते हैं कैंसर, है ना? कि एक तो डेड सेल निकले नहीं शरीर में से और बढ़ते जा रहे हैं, तो गांठ बन जाती है, बोलते हैं ना इसको कैंसर की गांठ है। तो दूसरे निकलेंगे नहीं, और दो तरह का होता है, कभी क्या होता है कि जो सेल डेड होके निकल गए लेकिन उसकी जगह नए बनने चाहिए ना, वो नए नहीं बनते हैं। तो कैंसर दो प्रकार के होते हैं, इसको हम बोलते हैं कैंसर, है ना? कि डेड सेल निकले नहीं और नए बनते जा रहे हैं। दूसरे में क्या होगा? डेड सेल निकल गए और उसकी जगह नए आने चाहिए, तो नए नहीं आते हैं, तो कम होता जाएगा बॉडी हमारा, राइट? Since these maintenance process are needed to prevent the damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside body of the organism, which we call the food. तो ये एक बात याद रख लो, कोई भी काम करो, आप सोच भी रहे हो ना, बैठ के कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, है ना, तो भी आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी सोचने में भी, क्योंकि एनर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। क्या? कोई भी प्रोसेस करना है ना, उसमें एनर्जी लगती ही है। अभी जैसे टीवी का रिमोट आपने लिया, चैनल बदलते जा रहे हो, है ना, तो उसमें से भी सेल की बैटरी ख़त्म होती जा रही है, लेकिन रिमोट में सेल डालोगे तो 6 महीने तक चलेगा, ख़त्म नहीं होगा। अब वही सेल आप घड़ी में डालोगे तो महीना या 2 महीना ही चलेगा,
राइट। और वही सेल आप खिलौने में, कार वाली कार चलती है ना रिमोट से, उसमें डालोगे तो एक दिन भी नहीं चलेगा, पूरा दिन खेल लिए शाम तक उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, खिलौने को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, घड़ी को उससे कम चाहिए, टीवी के रिमोट को उससे भी कम चाहिए, लेकिन एनर्जी चाहिए, राइट, सबको। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं, खुराक से, है ना। तो बार बार एनर्जी हमको अंदर डालनी पड़ती है। अभी खाने में एनर्जी छुपी है, ठीक है, लेकिन उसमें से एनर्जी निकालने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। आप लोग बीमार हो, ठीक है, बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, अरे पाव भाजी ने खाओ, रोटी सब्जी खाओ, सब कुछ। क्यों ना बोलता है वो सब खाने की, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की जो शक्ति है तो ऑलरेडी कम है। अभी जो आप खाओगे ये हैवी चीज़ है, तो उसमें से एनर्जी भी चाहिए निकालने के लिए, तो आपके पास तो एनर्जी है ही नहीं, तो खाने में से निकाल नहीं पाओगे एनर्जी, तो और बीमार पड़ जाओगे। तो कुछ ऐसे खुराक होते हैं जिसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी जैसे कुछ ये लोहे का उठाना है मुझे, तो थोड़ी एनर्जी चाहिए, है ना। लेकिन अगर पेपर को उड़ाना है, तो इसको मेरे को यहाँ हटाना है, तो ये हैवी चीज़ है, इसको मेरे को हटाना है, तो फूंक मारूंगा हट जाएगा, नहीं हटेगा, हाथ से ही रखना पड़ेगा। अगर पेपर पड़ा है उसको हटाना है तो दूर चला जाएगा, कम एनर्जी चाहिए। उसी तरह फ्रूट्स जब आप खाओगे तो उसको पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत पच जाएगा, तुम्हारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बीमार लोगों को इसलिए फ्रूट खिलाए जाते हैं कि जल्दी एनर्जी उसको मिलती जाएगी, उसमें से एक तो एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी और उसमें निकालने में कम मेहनत पड़ेगी। तो फ्रूट खाते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं हम लोग। A process we commonly call the nutrition. If the body size of the organism is to grow, additional raw materials will also be needed from outside. Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. अभी जो भी आप प्रोटीन की बात करो, ग्लूकोज की बात करो, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, उन सब के अंदर कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन। जो भी खाना हम खाएंगे उसमें से कार्बन तो होगा ही होगा। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड molecules. Most of these, depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process. The outside sources of energy could be quite varied. Since the environment is not under the control of the individual organism, this source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as all the kind of molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing and reducing reactions are some of the most common chemical means to break down the molecules, and for this many organisms use oxygen sourced from outside the body. This process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of the food sources for the cellular needs is what we called respiration. तो अभी दो प्रोसेस तुम्हारे सामने आए, एक तो आया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो हम खाने में से लेते हैं, खाना खाते हैं, वो हो गया न्यूट्रिशन। अभी खाना तो खाया हमने, लेकिन उसमें से एनर्जी कैसे निकलेगी? जो भी एनर्जी निकलेगी उसमें दो प्रोसेस होंगे, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ना, रिडक्शन मतलब उसके अंदर से ऑक्सीजन निकालना। अभी ऑक्सीजन डालने का काम कहाँ से आएगा? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो होता नहीं है, कहाँ से आता है ऑक्सीजन? हाँ, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? बाहर से। जब हम सांस लेते हैं तभी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, और वही ऑक्सीजन और हमने जो खाना खाया वो दोनों मिल के एनर्जी देंगे बॉडी को, ठीक है। तो जो सांस ले रहे हैं वो हमारा दूसरा लाइफ प्रोसेस हो गया
respiration. In the case of a single cell organism, no specific organ for taking the food, exchange of gases, or the removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? In multicellular organism, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organisms. It is therefore not surprising that the uptake of the food and of oxygen will also be the function of the specialized tissue. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all the parts of the body need them. This situation increases the need for transportation system for the carrying of food and oxygen from one place to another in the body. When chemical reactions use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. अभी देखो, सर दर्द कर रहा होता है तुम्हारा यहाँ पर, आप गोली खाते हो, गोली जाती है पेट में, तो सर दर्द कैसे मिट जाएगा? अगर यहाँ दुख रहा है तो यहाँ गोली लगानी चाहिए ना, है ना? तो कैसे खाते पेट में और सर मिट जाता है। या पीठ में दर्द है, पीठ में कुछ हुआ है, गोली खाते हैं तो पीठ ठीक हो जाती है। या पैर के अंगूठे में चोट लगी है, गोली खाते हैं पेट में और अंगूठा ठीक हो जाता है। इसका मतलब कि जो भी हमने पेट में डाला वो अंगूठे तक पहुंचा या तो सर तक पहुंचा। तो ये सर तक कैसे पहुंचा? अंदर हर जगह रास्ता होगा ना, पेट के अंगूठे, पेट से लेके अंगूठे तक और सर के बाल तक, राइट। तो इसका मतलब अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलती रहती है। कोई यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और पेट से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि जो भी हो रहा है तुम्हें, अगर इस उंगली में भी कुछ हो रहा है, राइट, फिर भी गोली तो पेट में ही खाई जाएगी, डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं रखी जाएगी, राइट। तो मतलब पूरी बॉडी का सर्कुलेशन चालू ही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू ही है। अभी आपने फूड तो ले लिया, खाना खा लिया, उसमें से एनर्जी भी निकाल ली, उसका जिस बॉडी पार्ट को चाहिए वहाँ तक पहुँचा भी दिया, लेकिन बाद में जब वो एनर्जी ले लेते हैं फूड में से, तो फूड कैसा हो जाता है? अभी आप लोग 9th में पढ़ रहे थे, जो भी आपको लेसन से याद करना था लर्न कर लिया, एग्ज़ाम में लिख लिया, आप पास हो गए। फिर 9th की बुक को आप क्या करते हो? फिर भी 9th की बुक पढ़ते हो, पास हो जाने के बाद क्या करते हो? कुश्ती वाले को दे देते हो। अब तुम्हारे लिए ये वेस्ट हो गई, काम की नहीं है ना। इसी तरह हमने जो खाना खाया उसमें से एनर्जी निकाल ली हमने, डाइजेशन होके एनर्जी निकल गई, बाकी का जो फूड बचा वो क्या हमारे काम का है? नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, है ना। तो दूसरे दो और प्रोसेस आ गए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन बॉडी में, और दूसरा आया एक्सक्रीशन, अभी जो निकालने के बाद हमने बॉडी के बाहर फेंक दिया, एक्सक्रीशन। अगेन इज द बेसिक रूल्स ऑफ द बॉडी design in multicellular organisms are followed. A specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transport system will need to transport waste away from the cells to this excretory tissue. Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. अभी देखो, स्कूल में प्यून का भी ज़रूरत पड़ता है, सफाई वाले का भी ज़रूरत पड़ता है, ड्राइवर का भी ज़रूरत पड़ता है, वॉचमैन का भी ज़रूरत पड़ता है, क्लर्क
जो फीस लेके या फॉर्म्स भरने का काम करता है उसका भी ज़रूरत पड़ता है, टीचर्स का भी ज़रूरत पड़ता है, राइट। और अगर आपकी स्कूल में गार्डन है तो माली का भी ज़रूरत पड़ेगा, राइट। तो कितने जनों की ज़रूरत पड़ेगी, वरना स्कूल में तो पढ़ना ही होता है, तो सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट से काम हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन उसके साथ साथ इतने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब मिल के काम करेंगे तो स्कूल सही से चलेगी। अगर मान लो कचरा साफ करने वाले रोज़ नहीं आए, छुट्टी पे चले गए, तो क्या होगा, स्कूल गंदी हो जाएगी, या तुम्हें अपना काम छोड़ के सफाई में लग जाना पड़ेगा। अगर ड्राइवर नहीं आया तो क्या होगा, आप स्कूल से घर नहीं पहुंच पाओगे या घर से स्कूल नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो सब एक दूसरे के साथ फंक्शन करते हैं। जब ड्राइवर आपको लेने आता है, सफाई वाला यहाँ सफाई कर देता है, टीचर नया लेसन तैयार करके रख देता है। जब आते हो तो स्कूल साफ़ सुथरी मिलती है, नया लेसन तैयार मिलता है। तो एक के साथ एक प्रोसेस कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन होता रहता है। तो इसी तरह हमने खाना खाया, राइट, बॉडी रिपेयर हो रही है, एनर्जी निकाल रही है, एनर्जी निकल जाने के बाद जो कचरा बचा है वो वेस्ट में चला जाता है। अभी देखो हमारी बॉडी में सबका अलग अलग फंक्शन है। आँख का काम देखने का है, आँख को बोले आज प्लीज़ मेरे दांत में दर्द है, तू खाना खा लेना मेरे बदले, तो आँख बोलेगी भाई मेरा काम सिर्फ देखने का है। खाना चबाने का तो काम दांत का है, ठीक है। कान को बोलेंगे आज मेरे नाक में दर्द है, सर्दी हुई है, तो सूंघने का काम तू कर ले, तो कान बोलेगा ये तो मेरे को आता ही नहीं है। हाथ में दर्द है तो पैर को बोलेंगे आज प्लीज़ तेरे पास भी 5 उंगलियां और एक अंगूठा है, तो तू ही लिखने का काम कर ले, तो पैर बोलेंगे मेरा तो चलने का काम है, पेन पकड़ना मेरे को नहीं आता है। तो हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन है उसका पर्टिकुलर एक फंक्शन है, उसके सिवाय वो काम नहीं कर सकता, है ना। When we walk or ride a bicycle, we are using up the energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesis protein and other substances needed in the body. This sources of energy and materials is the food we eat. We also need materials from outside in order to grow. Synthesis, protein and other substances needed in the body. These sources of energy and materials is the food we eat. How do living things get their food? Living beings को अपना food कैसे मिलता है? The general requirement of energy and materials is common in all the organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, includes the green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances, and these complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used up by the upkeep and the growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called the enzymes. Thus, the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. अभी देखो इंसान को या कोई भी जीव को खाने की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो खाने के ऊपर डिपेंड है। अभी खाने में भी कैसा है, 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म, एक होता है ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, राइट, और दूसरे होते हैं कौन से, हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। अभी देखो तुम्हें तो रसोई कुछ आती नहीं है बनाने की, तो तुम पूरी तरह अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंड रहोगे, मम्मी जब बनाएगी तभी खाओगे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ आता होता बनाना, मम्मी बाज़ार गई है, खाने का टाइम हो गया, भूख लगी है, तो कोई नहीं, घर में गैस ने बर्तन तो है, चलो मैं ही बना लेती हूँ, है ना। लेकिन आपको तो कुछ आता नहीं है बनाना, तो आप मम्मी के ऊपर डिपेंड हो, जब तक मम्मी नहीं बनाएगी तो आप भूखे मरोगे। उसी तरह ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स ही ऐसे हैं जो डायरेक्ट सनलाइट में से खाना बना लेते हैं। वो सिंपल लाइट है ना, सिंपल लाइट जो आ रही है उसमें से वो अपना खाना बना ले रहे हैं। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो ये पेड़ के पत्ते खाते हैं या घास खाते हैं, है ना, वो पेड़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं,
तो पेड़ जब तक लीव्स नहीं उगाएंगे या पेड़ काट डालेंगे या घास नहीं देंगे तो क्या खाएंगे? तो हम डिपेंड हो गए उसके ऊपर। अब इंसान भी गेहूँ खाएगा, चावल खाएगा, है ना, सब्ज़ी खाएगा, तो उसमें से एनर्जी निकालने का काम कॉम्प्लेक्स है। डायरेक्टली हमने नहीं बनाया खाना, ये खाना पहले प्लांट्स ने बनाया, फिर हमको मिला और फिर हम इसको अगेन सिंपल प्रोसेस में लेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले, ठीक है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो अपने आप खाना बना लेते हैं और पचा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने खाना तो खा लिया, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, पेट दुख रहा है, कुछ तकलीफ़ होती है, तो आप सोडा या इनो ने वो सब पीते हैं, है ना। इस तरह प्लांट्स जो होते हैं ना वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, खुद किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना खाना बना लेते हैं। Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs takes in the substance from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next section. Carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used and when required by the plants. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. अभी देखो, खाना तो प्लांट्स ने बना लिया सनलाइट की मदद से, अपने को उसको जितनी भूख थी उतना वो प्लांट ने अपने ग्रोथ के लिए खाना सनलाइट की मदद से यूज़ कर लिया। मतलब सनलाइट तो कंटिन्यूसली आ रही है, तो खाना भी कंटिन्यूसली बन रहा है। अभी वो नॉर्मल कार्बन कंपाउंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अभी प्लांट को जितनी ज़रूरत थी उतना तो उसने यूज़ कर लिया, बाकी का जो बन रहा है खाना वो स्टोर्ड बना के रख लेता है कि भाई रात को भूख लगी तो मेरे को, दिन में तो सनलाइट है, मान लो बारिश की सीज़न हुई तो सूरज तो निकलेगा नहीं, सनलाइट आएगी नहीं, तो उसको भूख लगेगी तो खाना कहाँ से खाएगा। प्लांट खाना सनलाइट की मदद से बनाता है, फिर जब तक उसको सनलाइट मिलेगी उसका खाना बनता रहेगा। लेकिन बारिश के टाइम में, बारिश की सीज़न में सनलाइट तो मिलती नहीं है ना, तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो भूखा मर जाएगा प्लांट। तो क्या करेगा प्लांट, अपने अंदर स्टोर्ड कर लेता है खाना, पहले जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना वो स्टोर्ड कर लेता है, और वही स्टोर्ड एनर्जी हम लोग तोड़ के खाते रहते हैं प्लांट में से। तो प्रोसेस क्या है ग्लाइकोजन बनने का? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है हवा में। प्लांट खाना किसकी मदद से बनाता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड। हम प्लांट क्यों उगाते हैं? कि हमारी वातावरण शुद्ध होगा, है ना। शुद्ध कैसे होगा कि आजू बाजू में से प्लांट को खाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हम लोग प्लांट उगाएंगे तो प्लांट को मुफ्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट ले लेगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, क्या चाहिए? पानी, 12H2O, और सनलाइट की मदद चाहिए। सनलाइट तो होगा और प्लांट के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो अगर ये चार चीज़ मिला दी हम लोग, ठीक है, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें होगी तो हमको ग्लूकोज बन जाएगा। देखो अभी ऐसा कोई मशीन है तुम्हारे पास, मान लो ये कोई एक डब्बी है, इसके अंदर मैं इसको धूप में रख देता हूँ तो सनलाइट तो आ गई। अभी इसके अंदर क्लोरोफिल डाल देता हूँ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में ऑलरेडी है, ये डब्बी खाली है, खाली है मतलब अंदर हवा गई, हवा गई मतलब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो है थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ा पानी डाल देता हूँ, ठीक है। अब पानी भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, ठीक है, और धूप में रखा है तो धूप भी, सनलाइट भी आ गई। बस थोड़ा सा क्लोरोफिल का पाउडर इसके अंदर डाल देता हूँ। क्लोरोफिल का यानी कि पत्ते जो होते हैं ना,
प्लांट के, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो पत्तों का पाउडर बना के इसमें डाल देता हूँ तो क्लोरोफिल भी आ गया। अभी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट है, तो इसमें खाना बनेगा? नहीं बनेगा, ये तो डब्बी में ऐसा ही पड़ा रहेगा, 2 दिन बाद बांस मारने लगेगा। लेकिन प्लांट जो है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग खाना नहीं बना सकती। भगवान ने सिर्फ ये शक्ति प्लांट्स को ही दी है कि प्लांट को हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना है, क्लोरोफिल तो उनके पत्तों में है, सनलाइट उसके ऊपर मुफ्त में आएगी, और पानी तो वो नीचे से सोख लेगा ज़मीन में से। तो इनकी मदद से एप्पल उगने लगेगा। इसमें एप्पल नहीं आएगा, प्लांट में आएगा, राइट। तो जो एप्पल उगा उसके अंदर क्या होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सी है ना। अभी कार्बन डाइऑक्साइड देखो हमारे नुकसान करता है ना। तो प्लांट क्या करते हैं? जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मैं ले लेता हूँ। अभी उसी दुश्मन को, तुम्हारे दुश्मन को मैं तुम्हारा दोस्त बना के देता हूँ। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देगा। ग्लूकोज में क्या होता है? C6H12O6। देखो यहाँ पर बोर्ड पे आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, ये हमारा दुश्मन है ना। फिर 12H2O, H2O मतलब पानी, है ना। और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं। अभी ये देखो नुकसान करेगा हमको कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो प्लांट ले लेगा अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। अभी यहाँ पर कार्बन के कितने हैं? 6 है ना। यहाँ पर आ गई सनलाइट और यहाँ पर आ गया क्लोरोफिल, है ना। इसकी मदद से अब ये क्या बन जाएगा? C6H12। H12, H कितने हैं यहाँ पर? 12। यहाँ पर कहाँ 12 है? 2 भी कहाँ है? आगे कितने हैं? देखो हमेशा याद रखो, आगे जो होता है और यहाँ नीचे जो लिखा होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 12 इंटू 2 24 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 24 हाइड्रोजन यहाँ पर 24 है। तो हमने यहाँ पर तो 12 लिख लिया। अभी भी 12 बच्चे हैं अपने पास, याद रखना, ठीक है। अभी O कितने हैं यहाँ पर? O कितने हैं यहाँ पर? 1 नहीं है, इसके आगे 2 है। इसके आगे कहाँ 2 है? 24। ये 12 जो है ना, ये 12 का मतलब आगे जो लिखा है ना, इसका मतलब ये H के लिए भी 12 है और ऑक्सीजन के लिए भी 12 है। लेकिन यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन के, तो 12 इंटू 2 डबल हो जाएगा 24। यहाँ पर ऑक्सीजन के पीछे कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए सिर्फ 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे, है ना। तो अभी हमारे पास 12 ऑक्सीजन है, तो हमने यहाँ पर 12 में से 6 तो ले लिया। कितना ले लिया? 6। अभी H2O, H2O मतलब, H2O का मतलब क्या होता है? हाँ, तो 6, यहाँ पर 6 है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन के लिए भी 6 और ऑक्सीजन के लिए भी 6। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 12। कार्बन कितना है? 6, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन 2 जगह है, देखो 12 कितने हो गए? 24। यहाँ पर कितने हैं? 24, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 6 नहीं 12। यहाँ पर कितने हैं? 6 + 6, यहाँ पे भी 6, तो 12। हाँ, तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। 6 इंटू 2 12। तो 12 इसके और 12 इसके, यानी ऑक्सीजन 24। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? पूरे।
तो जो भी चीज़ें यहाँ पर है वही की वही चीज़ें यहाँ पर है। क्या बात है? अभी देखो यहाँ पर जैसे शक्कर रखी है, नींबू रखा है, पानी रखा है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? अगर मैंने यहाँ पर रख दिया नींबू, शक्कर और पानी और नमक, 4 चीज़ें रखी हैं, इसको नींबू शरबत बोलो। कब बोलोगे इसको नींबू शरबत? जब इन सबको मिक्स करोगे तब। मिक्स करेंगे, पानी के अंदर नींबू डाल दिया, शुगर डाल दी और नमक डाल दिया और मिक्स कर लिया, तो यही चीज़ें थी जो यहाँ पर आ गई। अब ये कहलाएगा नींबू शरबत, है ना। यहाँ पर जो कार्बन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पर ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज में से तुमको शक्ति मिलती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें शक्ति देता है? नहीं देता है। जैसे तुमने अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है, बुक तुम्हारे लिए जो तुमने लिखी थी, नोटबुक, है ना, वो नोटबुक लिखी हुई नए क्लास में जाते हो तो पुरानी नोटबुक को क्या करते हो? क्या करते हो? पूरी भरी हुई नोटबुक तुम्हारी 9th स्टैंडर्ड की भरी हुई नोटबुक का तुमने क्या किया? पस्ती में दे दिया ना। पस्ती वाले को क्या काम है कि तुमने तो पूरी लिखी थी, कोरी होती तो काम आती, लिखी हुई वो क्या करेगा? क्या करेगा लिखी हुई नोटबुक का? वो फिर भी आपको पैसे दे के गया ना, 3 रुपये या 4 रुपये कुछ भी, तो उसको कुछ काम आएगी तो ही दिया होगा ना, ऐसे थोड़ी ना दे देगा कोई। तो वो नोटबुक का क्या करेगा, लिखी हुई नोटबुक का? हाँ, उसमें एक बड़े से टंकी में वो लोग डाल देते हैं और एक दवा डाल देते हैं, तो पेपर में जो भी इंक होती है ना, वो सारी इंक पानी में चली जाती है और पेपर जो है तुम्हारा वो प्लेन हो जाता है। अभी वो पेपर जो है ना प्लेन हो जाएगा, लेकिन पानी वाला हो गया। अब जब वो निकालोगे तो फट जाएगा, बचेगा नहीं, तो उसको वो सुखा लेते हैं पानी से। इंक निकाल ली सारी और पानी भी सुखा दिया, अब वो पाउडर फॉर्म में हो गया। अब उसमें फिर से कोई दवा डालेंगे, लोट जैसा बनाएंगे और लंबा रोटी जैसा बनाएंगे तो अगेन पेपर बन जाएगा, वो उसको फिर से यूज़ कर सकते हो। इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ये ग्लूकोज बन गया। अभी देखो, आप कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो तुम्हें नुकसान करेगा, लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज बन जाएगा तो तुम्हें शक्ति देगा। तो ये कर कौन सकता है? सिर्फ प्लांट्स। प्लांट्स के अलावा कोई नहीं कर सकता ये काम। तो होता क्या है ये सारे प्रोसेस के अंदर? पहले तो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट के पत्तों के अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी थी उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके अंदर पानी चूसा ना जो प्लांट ने, वो पानी को उसने तोड़ दिया, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, अलग अलग कर दिया पानी को। ठीक, तो पहले लाइट एनर्जी ली सूरज में से, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर जो पानी था उसके पास उसको उसने तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अभी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा स्टेप में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को उसने कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया। दिस स्टेप्स need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during day. अभी जैसे ही मम्मी बाज़ार से सब्जियां ले आएगी तो तुरंत नहीं बना डालेगी, है ना। शाम को बाज़ार गई, फ्री हो के घर में फ्री होने के बाद तो सब्जियां ले आई। अभी ये सब्जियां तो ऐसा नहीं कि अभी ले आई तो बनानी ही पड़ेगी, वो तो कल बनाएगी, है ना। कल सुबह सब्ज़ी बनाए, क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी तो मिलेगी नहीं, इसीलिए वो शाम को लेके रख देती है। अंडरस्टूड? तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लेते हैं तो तुरंत उसका खाना नहीं बनाते,
जैसे अलग अलग प्लांट का अलग अलग प्रोसेस होता है ना. Let us see how each of the components of the above reactions are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope as shown in figure 6.1, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are called the cell organelles called the chloroplast, which contain the chlorophyll. Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. अभी आप देखो लीफ जो देखोगे ना आप उसको काट के क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो लीफ के अंदर आपको ग्रीन कलर के डॉट्स दिखेंगे थोड़े थोड़े. वो ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट. क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल. राइट. अब एक एक्टिविटी करेंगे जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि ये क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कैसे काम करता है. टेक ए पोटेड प्लांट विथ वेरी वेट्रिगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल द मनी प्लांट और द क्रोशन. कीप द प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप. अभी मैंने पहले बोला ना कि प्लांट जो खाना बनाता है वो थोड़ा बहुत अभी खा लेता है भूख लगती है तो, और बाकी का जब उसको भूख लगती है तब वो यूज़ करता है. ठीक है. अभी प्लांट खाना किसकी मदद से बनाता है? सनलाइट की मदद से. अगर उसको हम सनलाइट ना दे तो मर जाएगा ना? नहीं. जब तक उसने स्टोर्ड रखा है अपना खाना तो वो स्टोर्ड में से लेता रहेगा, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगा तब वो मर जाएगा. ठीक है. तो प्लांट को क्या करो, एक ऐसे डार्क रूम में रख दो जहाँ पर थोड़ी सी भी लाइट ना आती हो. जैसे हमारा कबाट है, कबाट में लॉक लगा के रख दिया है ना, तो उसके लाइट अंदर जाएगी ही नहीं. तो प्लांट को अंदर रख दो 3 दिन के लिए, तो क्या होगा कि जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी होगी ना वो खा लेगा. देखो अगर मम्मी आपको लॉक मार के चलेगी बाहर 3-4 दिन के लिए, आपको घर में बंद कर दिया मम्मी ने 3-4 दिन के लिए और चली गई. अब खाना तो मम्मी बनाएगी नहीं, है नहीं घर पे, तो आपको बनाना आता नहीं है, तो आप क्या करोगे? घर में ढूंढोगे डब्बों में मम्मी ने क्या क्या रखा है. तो बिस्किट पड़े होंगे तो बिस्किट खा जाओगे, ममरे पड़े होंगे तो ममरे खा जाओगे, है ना. तो 3 दिन बाद जब मम्मी घर पे आएगी तो जितना खाना घर में पड़ा था वो सब तो आप खा गए होंगे. बिस्किट, ममरा ने, सेव ने, जो भी था वो, है ना. अब घर का खाना तो ख़त्म हो गया और मम्मी अभी तक नहीं आई, फिर क्या होगा तुम्हारा? बीमार हो गए. हाँ, फिर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जितना था उतना तो सब खा गए हम खाना. अंडरस्टूड. तो प्लांट को जब आप डार्क रूम में रख दोगे तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो नया खाना नहीं बनाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी स्टोर्ड पड़ा था उसके पास वो उसमें से लेता रहेगा. Now keep the plant in the sunlight for about 6 hours. Again वो जब प्लांट को निकालोगे 3-4 दिन बाद, मतलब उसकी एनर्जी सारी ख़त्म हो गई होगी, अंदर है ही नहीं. अभी उसको धूप में रखो वापस 6 घंटे के लिए. Pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and trace them on the sheet of paper. Dip the leaf in the boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for about 3 minutes. Observe the color of the leaf and compare with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? Now let us study how the plant obtains carbon dioxide. This we are going to do it tomorrow. आज यहीं पर स्टॉप करते हैं. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.